A very good afternoon, dear students, dear learners, dear friends, and dear followers. Again, I am here to upload a new video on the channel Dialect English Lectures. And now, in today's video, I'll talk about a lesson or a short story, The Lost Child. And it is written by or penned by an Indian originated writer, Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born in Peshawar before independence in 1905, and he was very well known Indian writer, and most of his storytelling in his novels and in his short stories, he raised social issues, social injustice of Indian society belong to villages or towns or cities. प्रिय छात्रों, मैं मोहम्मद यासीन बख्श डायलेक्ट इंग्लिश लेक्चर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ पुनः एक बार नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। और आज हम और आप जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का एक शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, और जिसको लिखा है इंडियन ओरिजिनेटेड, भारत में पैदा हुए 1905 में, आज़ादी से पहले के राइटर जिनका जन्म भारत में हुआ, स्वतंत्र भारत से पहले के, और उनका नाम है मुल्क राज आनंद। द लॉस्ट चाइल्ड इज ऑल्सो अ चैप्टर इन यूपी बोर्ड सिलेबस ऑफ 12th क्लास इन शॉर्ट स्टोरी सेक्शन। ये सेम चैप्टर जो है ये 12th क्लास के यूपी बोर्ड में भी है, जो कि क्लास 12th में यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल है। तो इस पूरे चैप्टर में जैसा कि थीम है, जैसा कि टाइटल है प्ले का या शॉर्ट स्टोरी का, नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा। वेरी नोइंगली एंड डेलिबरेटली वी जस्ट नो दिस दैट Mulk Raj Anand describes about a little child who has lost his parents in the fair while he was with them to enjoy the fair. मुल्क राज आनंद इस पूरी कहानी में एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अपने माता पिता के साथ एक मेला घूमने गया हुआ है, लेकिन रास्ते में मेले में वो खो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले के भी तमाम जो वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं छात्रों के लिए सीखने के लिए, वो दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और इस कहानी को भी हम लोग दोनों ही भाषाओं में समझेंगे। तो शुरू करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद की स्टोरी, मुल्क राज आनंद की एक छोटी कहानी जिसको शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में शामिल किया गया है सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th में और यूपी बोर्ड क्लास 12th में। द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर और स्टोरी स्टार्ट्स with the open field. A little child was going with his parents to enjoy the fair, and it was the festival of spring, as in India, especially traditionally or customically, we enjoy the things. Each and everyone we celebrate a festival. It was a festival of spring, and in the village there was a fair held or organized by the committee or team members. The little child was with him in the way as he crossed the field to enter the vast or green Maidan where the fair was held or organized. In the first of the story,
the Indian writer Mulk Raj Anand narrated about the natural things or about the natural beauty towards the child attracted and fascinated. As he narrated at the starting of the story, the people just came out from their houses having tied the turban of saffron color, and the ladies put or wear a yellow sari to enjoy the weather or to enjoy the things. The next thing he narrated, it was a green vast field or maidan. On the one sided, the mud walls house situated in a row, and on the other side there was a mustard field. The child attracted towards it also, and he wanted to enjoy to enter in it. On the other thing, Mulk Raj Anand narrated here, as the child attracted towards the bee and he wanted to catch them, towards the doves, and as he heard the echoing sound of koel and the doves, he wanted to listen it, and the other things, as he saw the flowers on the trees and it was just creeping here and there on the creepers, the child wanted to catch it and to enjoy it. The fragrance and perfumes of the flowers spreads the beauty surrounding all over the society, all over the field, and the child fascinated or attracted towards it. As he moved on, he saw a sweet meat seller just decorated his stall with various sweets, and there were gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi, and so on. The little child liked to eat sweet meat and he wanted barfi. First, he pledged or requested his parents, or he wanted to request his parents to buy or to purchase some sweets for his or for him, but he knew very well that his parents would give a refuse signal to him for not to buy it. So he moved on as his parents called him, and he followed the path of his parents. After that, the little child saw a man who was selling garlands and flowers, garlands of gulmohar flowers. The child wanted to purchase a garland to put it or to wear it in his neck. The child wanted to pledge his parents about it to purchase, but very well known, he knew that his parents would give refusal not to buy it, and again they called him, and the child followed his parents and moved on. After that, the child attracted towards the juggler's music. A snake just coiled out and dancing on the music of the flute. The child wanted to listen it, as he knew that his parents would give refusal and would not give him permission to listen such kind of coarse music. And as their child, the parents called the child, he moved on and followed the path of his parents. Next, as the child moved on further, he saw a man
who was standing at the roadside, having taken many colors balloons and was trying to sell it. The child fascinated or attracted towards the balloon, and he wanted the tricolor balloon. But very well he knew that his parents would give no permission to him to buy the balloon, and he would say that he is not too small or too tiny to little such kind of toys. And as his parents called him, he moved on. Next, the parents moved on. The little child followed him or followed them, having depressed his desire with sobbing in little sound or voice. At this, the child attracted towards the thing around about. The child wanted to sit in it, to enjoy the roundabout, and at last, very hardly he could collect his braveness or courage to say his parents at last that he would want to sit in the roundabout to enjoy. But to say this, as he turned back, he didn't saw his parents back. He looked them all around. There was no sign of his parents. He went to the other side where he saw his parents the last time, but there was no sign of his parents. He moved to the other direction. His turban just, it was totally watered with the perspiration and with the mud. He was looking very dirty, and he was searching his parents. On the other direction, he ran very sudden to search his parents, but there was no sign of his parents there. The child started weeping bitterly to find his parents, and his sobbing just started in a very loud voice. He went back to the direction of the temple's gate near the well where his parents sat down for some time to take rest. The parents and the little child ran to the direction of the temple so that he could find his parents there. But very hardly or very scarcely he could reach, and entered between the crowd or among the crowd. There were a rush, and thousands of people gathered to enter in the temple to worshipping. Now the child just had to trample under feet of someone, but sudden, in a very loud voice, he cried, "Mother, Father." A man just got down, and very hardly he got up the child in his lap or hand and asked him who he was and from where he came in the thick crowd, and why he is weeping or he was weeping, and why he was sobbing. The child couldn't say nothing but just begged, "I want my mother, I want my father." That man tried to console the child anyhow, and he just take him to the sweetmeat seller where various kinds of sweets were selling, and the man indicated
the little child to ask what he would want to eat. The child just turned his face towards the meat and he only sobbed, "I want my mother, I want my father." On the next, the man just had tried to console the little child and had taken him to the juggler's music. The child didn't want to listen it. On the other side, the man tried to console the child, just had taken him to the balloons man, but he didn't want any kind of balloon. At next, the child tried to console the little child, having taken him to the juggler's music, and after that to the roundabout, and after that so on. Many things were available, or the stall decorated and established in the fair. Each and every stall the man had taken to that little child so that he could be calm, and now he just say from where he came and of whom he was a son. The child couldn't say nothing, didn't want anything of each and everything which he wanted to buy or to enjoy when he was with his parents, but now everything he neglected or objected and turned his face towards each and everything and just sobbed, "I want my mother, I want my father." In this whole story, Mulk Raj Anand expressed his thought and a loving feelings and desire of a little child, how much the value of the parents in the eyes of the child or a son. This whole story narrated here the value and the importance of the parents. When the child was with his parents, he wanted each and everything and enjoy the pleasure and enjoy the natural things, to catch the bee and butterfly and just enjoy the running water of the river and many things and so on. But as he separated from his parents in the fair, nothing was interesting for him, and towards everything his uninterest developed, and he only wanted and sobbed for his mother and father. प्रिय छात्रों, जैसा कि हम और आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कहानी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित और रचित द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा, जिस कहानी की शुरुआत मुल्क राज आनंद ने कुछ इस प्रकार से की है कि प्रथम दृश्य में और स्टार्टिंग में शुरुआत में मुल्क राज आनंद जो हैं वो कहानी की शुरुआत यूँ करते हैं कि लोग अपने अपने घरों से निकल आए हैं, स्प्रिंग का मौसम है, स्प्रिंग सीज़न में गांव में मेला लगा हुआ है। एक बड़े से और विशाल से मैदान में औरतें बहुत खूबसूरत पीले कलर का वस्त्र धारण किए हुए हैं और पुरुष अपने अपने सरों पर केसरिया रंग का एक पगड़ी, जो कि शान और कहीं ना कहीं समृद्धि की प्रतीक है, कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है, जिसको पहने हुए हैं और हर्षोल्लास में आगे चले जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल हैं, कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ लोग बैलगाड़ियों पर सवार हैं और बच्चे झूमते गाते नाचते गाते हुए मेले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अपने अपने माता पिता के साथ। यहाँ पर मुल्क राज आनंद ने एक छोटे से बच्चे की कहानी का जिक्र किया है। जो छोटा सा बच्चा वास्तव में अपने माता पिता के साथ इस मेले को घूमने के लिए जा रहा है। प्रारंभ में छोटा सा बच्चा उस गांव की बहती हुई नदी को देखता है, गूंजती हुई और गाती हुई कोयल की आवाज़ों को सुनता है और मक्खियों और मधुमक्खियों के छत्तों को निहारता है और यहाँ तक कि उड़ती हुई तितलियों को निहारता है, यहाँ तक कि फाख्ताओं की गूंजती हुई आवाज़ को सुनता है और
खूबसूरत लगे हुए पेड़ों में फूलों की सुगंध को महसूस करता है और इन टहनियों पर लटके हुए खूबसूरत फूलों को पकड़ लेना चाहता है, उड़ती हुई चिड़ियों को पकड़ लेना चाहता है और उड़ती हुई तितलियों को पकड़ लेना चाहता है। प्राकृतिक सुंदरताओं को देखता हुआ, प्राकृतिक सुंदरताओं को निहारता हुआ और प्राकृतिक सुंदरताओं का आनंद लेता हुआ बच्चा आगे बढ़ता है अपने माता पिता के साथ मेले की ओर। मेला जहां एक और गांव में लगा हुआ है, गांव की रूपरेखा मुल्क राज आनंद ने कुछ इस प्रकार व्यक्त की है कि सड़क, जहां एक और गांव में सड़क की एक तरफ कच्ची मिट्टी से बनी हुई झोपड़ियां निर्मित हैं जो कि कतार में शामिल हैं, और जहां दूसरी तरफ गांव में सरसों के खेत सड़क की दूसरी ओर लहलहा रहे हैं। इन दोनों के बीच से जो पगडंडी सी पतली सी सड़क गांव से मेले की ओर जा रही है। तमाम लोग उस रोड पर पैदल, घोड़े गाड़ी पर, घुड़सवारी पर और तमाम साधन जो वहाँ मौजूद हैं उन पर सवार होकर मेले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तभी बच्चे की नज़र एक खिलौनों की दुकान पर पड़ती है। बच्चा उस खिलौने को पा लेना चाहता है। उस खिलौने की तरफ वो निहार कर देखता है, ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन उसके माता पिता तुरंत ही उसको आवाज़ दे देते हैं और बच्चा अपने माता पिता के आवाज़ का अनुसरण करता है और उनके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन तब तक वो पीछे मुड़कर उस खिलौने को निहारता रहता है जब तक कि वो खिलौना उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गया। तभी बच्चा अपने माता पिता के साथ मेन और मुख्य मेले में प्रवेश कर जाता है। मुख्य मेले में प्रवेश करने के बाद उस छोटे से बच्चे की नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। मिठाई की दुकान पर तमाम किस्म की मिठाइयाँ सजी हुई थीं। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और तमाम किस्म की मिठाइयाँ। बच्चे के मुंह में मिठाई को देखकर पानी आ जाता है। वो बर्फ़ी को ख़रीद लेना चाहता है और खा लेना चाहता है। बच्चा अपने माता पिता से ये आग्रह करने का प्रयास करता है कि उसको बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो ये जानता है कि उसके माता पिता उसको बर्फ़ी नहीं दिलवाएंगे और वो अपने माता पिता की आवाज़ को सुनकर पुनः उनके अनुसरण करते हुए उनके पीछे चल देता है। थोड़ी ही दूर बच्चा और आगे बढ़ता है, तभी देखता है एक व्यक्ति जो बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे लिए हुए और बेच रहा है। बच्चा चाहता है कि वो एक 3 कलर का खूबसूरत सा गुब्बारा जो वो लिए हुए है वो ख़रीद ले और उस गुब्बारे से खेलते हुए मेले का आनंद ले। वो कोशिश करता है अपने माता पिता से गुब्बारा ख़रीदने की कहने के लिए, लेकिन वो ये जानता है कि उसके माता पिता उससे ये कह देंगे कि वो अभी अब गुब्बारा खेलने की उम्र का नहीं है और उसको गुब्बारा नहीं दिलाएंगे। इसलिए पुनः वो अपने माता पिता के पीछे उनकी आवाज़ का अनुसरण करते हुए चल देता है और चला जाता है। तभी आगे बढ़ता है, जब बच्चा देखता है कि एक सपेरा जो है वो एक बीन बजा रहा है और एक सांप जो है वो पोटरी से बाहर आकर उस बीन की ध्वनि पर नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। बच्चा उस संगीत को सुन लेना चाहता है, उस नृत्य को देखना चाहता है। तभी उसके माता पिता आवाज़ देते हैं और बच्चा ये जान जाता है कि उसके माता पिता उससे यही कहेंगे कि ये भद्दा संगीत है और ये तुम्हारे सुनने के लायक नहीं है। बच्चा इन आवाज़ को सुनकर और इस बात को महसूस करके तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और अपने माता पिता के पीछे चल देता है। तभी बच्चा देखता है कि एक फूल बेचने वाला जो तमाम फूलों को बेच रहा है, जिसकी सुगंध आसपास के माहौल में बिखरी हुई है, सुगंधित कर रही है हवा को, और जो गार्लैंड जो मालाएं बेच रहा है गुलमोहर के फूलों से निर्मित, बच्चा उसमें से एक माला को ख़रीद लेना चाहता है अपने गले में पहनने के लिए। उस माला को पहनकर वो उसकी सुगंध को महसूस करना चाहता है, वो आनंदित होना चाहता है, वो मेले का आनंद लेना चाहता है, लेकिन वो ये जानता है कि उसके माता पिता उसको ये माला भी नहीं दिलाएंगे। तभी अचानक से उसके माता पिता की आवाज़ आती है
और वो अपने माता पिता की आवाज़ का अनुसरण करके आगे बढ़ जाता है। तभी बच्चे की नज़र पड़ती है अंत में एक झूले की ओर। बच्चा बैठना चाहता है उस झूले में। तमाम लोग उस झूले में बैठे हुए हैं, जो झूल रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं तो कुछ डर से चिल्ला रहे हैं। बच्चा झूले की मानिंद ही अपनी आंखों को ऊपर से नीचे घुमा रहा है, झूलते हुए झूले को देख रहा है और वो ये चाहता है कि वो इस झूले में बैठकर झूले, लेकिन वो ये जानता है कि उसके माता पिता उसे इसमें भी झूलने की आज्ञा नहीं देंगे। तभी वो अपने माता पिता की आवाज़ सुनता है और उनका अनुसरण करके आगे बढ़ जाता है। तभी बड़ी मुश्किल से बच्चा पहले ये सोचता है कि वो अपने माता पिता से किसी तरीके से झूले में झूलने की प्रार्थना करेगा और वो ये कहने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने माता पिता को अपने इर्द गिर्द नहीं पाता है। वो देखता है कि उसके माता पिता कहीं उससे खो गए हैं। बच्चा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए अपने माता पिता को पुकारता है, चिल्लाता हुआ अपने माता पिता को आवाज़ देता हुआ एक दिशा की ओर भागता है, लेकिन वहाँ उसके माता पिता उसको नज़र नहीं आते हैं। तभी वो दूसरी दिशा की तरफ भागता है, परेशान सा है, बदहवास सा है और बिल्कुल व्याकुल लग रहा है। उसकी पगड़ी खुल चुकी है, उसके कपड़े पसीने से भीग चुके हैं जो कि मिट्टी की वजह से बहुत गंदे नज़र आ रहे हैं। पसीने में भीगा हुआ बच्चा अपने माता पिता की तलाश में है। जब कहीं उसको अपने माता पिता नहीं दिखते हैं तो वो उस ओर भागता है जहाँ पर उसके माता पिता कुएं के पास एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुके थे। बच्चा उस ओर भागता है अपने माता पिता की तलाश करने के लिए, लेकिन वहाँ भी वो देखता है कि उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं है। बच्चा परेशान होता है, सिसकियाँ ले रहा है, रो रहा है, बदहवास है और अपने माता पिता की तलाश में है। तभी उसे याद आता है कि हो सकता है माता पिता मंदिर में दर्शन के लिए गए हों। वो मंदिर की ओर भागता है जहां हजारों लोगों का मजमा इकट्ठा है, हुजूम लगा हुआ है दर्शन के लिए। और बच्चा किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से भीड़ के बीच में घुस तो जाता है अपने माता पिता को तलाश करने के लिए, लेकिन लोगों की भीड़ में जहां बड़े बड़े ताकतवर मजबूत लोग इकट्ठा थे, बच्चा उस भीड़ में अपने आप को आगे सरवाइव नहीं कर पाता है। उस भीड़ में वो अपने आप को आगे तक नहीं ले जा पाता है। लोगों के पैरों के नीचे से निकल के किसी तरीके से माता पिता की तलाश में है, लेकिन तभी वो एक व्यक्ति के पैर के नीचे आ ही जाता यदि उसमें से एक चिल्लाता हुआ वो बच्चा अपने माता पिता को ना पुकार लेता। और तभी एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से झुककर उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेता है। उससे पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से पहुँच गए, इतनी भीड़ के बीच में तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन है और वो कहाँ हैं। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, केवल सिसकियाँ लेता है और अपने माता पिता को पुकारता है और अपने माता पिता को ढूंढता है। वो व्यक्ति समझ जाता है कि बच्चा खो चुका है। बच्चे को शांत करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए वो व्यक्ति मिठाई की दुकानों पर, फिर गुब्बारे की दुकानों पर, फिर झूले के पास, फिर सपेरे के संगीत के पास और उसके बाद वो उन तमाम चीज़ों की तरफ ले जाता है बच्चे को। और उस माला बेचने वाले जो गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा था उसके पास भी ले जाता है। प्रत्येक चीज़ को बच्चे को दिलाना चाहता है, दिखाता है और पूछता है कि इनमें से तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो ले लो। और वो बच्चे को किसी तरीके से शांत करना चाहता है, उसको धैर्य बंधाना चाहता है। बच्चा प्रत्येक चीज़ से इनकार कर देता है और वो कुछ नहीं चाहता है, केवल सिसकियाँ लेकर अपने माँ बाप को पुकारता है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये कहानी हमें ये बताती है कि एक बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ होता है तो वो मेले की तमाम चीज़ों को पा लेना चाहता है, मेले की तमाम चीज़ों को आनंद लेना चाहता है। मेले के जो खुशगवार और एक खुशनुमा माहौल है उसमें आनंदित होता है, कूदता खेलता भागता यहाँ वहाँ जाता है। लेकिन जब वो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है तो वो प्रत्येक चीज़ जो वो पा लेना चाहता था, अब वही प्रत्येक चीज़ उसको बगैर इच्छा के उसे दिलाई जा रही थी उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको अपनी गोदी में उठाए हुए है और उसे धैर्य बंधाने की कोशिश कर रहा है। गुब्बारे, संगीत सुना देना चाहता है, झूले में झुलवा देना चाहता है, मालाएं दिला देना चाहता है, मिठाई दिला देना चाहता है। लेकिन वो बच्चा प्रत्येक चीज़ लेने से इनकार कर देता है, प्रत्येक चीज़ की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है, सिसकियाँ लेता है, रोता है, बदहवास है, घबरा रहा है और केवल सिसकियाँ लेकर पुकार रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी में माँ और पिता की, हमारे माँ बाप की कितनी अहमियत है, उनकी कितनी वैल्यू है, उनका कितना महत्व है कि जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम प्रत्येक
एक चीज़ पा लेना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमें संसार की सारी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं, हमें संसार की सारी चीज़ें अर्थहीन लगती हैं, हमें संसार की सारी चीज़ें निष्क्रिय लगती हैं, वो हमें आनंदित नहीं कर पाती हैं, वो हमें खुश नहीं कर पाती हैं, जैसा कि इस छोटे से बच्चे का हाल है। और इस प्रकार से इस खूबसूरत कहानी को बच्चे के द्वारा और इस पूरे कहानी को द लॉस्ट चाइल्ड के ज़रिए, लॉस्ट चाइल्ड के माध्यम से मुल्कराज आनंद ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में हमारे माँ बाप की महत्ता क्या है, उनकी अहमियत क्या है, और हम सभी इस कहानी को पढ़कर इस कहानी को समझें, इस कहानी से सीखें और अपने माँ बाप की वैल्यू को समझें कि हमारे माँ बाप की वाकई में हमारे जीवन में क्या महत्ता है। मुल्कराज आनंद का जो प्रयास है, मुल्कराज आनंद ने जो पृथक और अथक प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से हमें समझा देने का, कहीं ना कहीं मुल्कराज आनंद अपने उस प्रयास में सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं मुल्कराज आनंद अपने उस प्रयास में कामयाब हुए हैं। और मुल्कराज आनंद के इस प्रयास को कामयाब करने में कि जाहिर सी बात है कि आज ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और मुल्कराज आनंद की इस कहानी को हम पढ़कर कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होते हैं, और मुल्कराज आनंद के लिए कहीं ना कहीं हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस कहानी के माध्यम से एक नया पाठ, एक नई सीख देने का प्रयास किया है।